पॉइंट्स आर कि आपने आज तक जितने भी मॉक्स दिए थे, now all the mocks which you had attempted, हमने सारे, मैंने individually have gone through all those mocks. The first very important thing is, please don't attempt any question unnecessarily. Negative questions सबको कम करना है. For all those individuals who are scoring in high 60s or high 70s, and even for all those individuals who are scoring in low 30s or low 40s, please don't attempt questions just for the sake of attempting question. Second, मॉक में जो क्वेश्चंस आते थे और मॉक में जो रैंक आता था, remember one thing, rank does not matter, college matters. So it can very well happen that you have you belong to the reserved category and you are securing a rank above 1000 and still you will get a seat in National Law School, Bangalore or Hyderabad. So what I am telling you in this present discussion is that you need to understand your preferences. बहुत लोगों ने अपना प्रेफरेंसेस बैंगलोर को नहीं डाला होगा, किसी ने भोपाल डाला होगा, किसी ने JNLU को डाला होगा. So tomorrow when you are going to appear in this examination, you need to be very smart and meticulous in your strategy which you will be adopting in the examination. मेरे कहने का मतलब ये है कि imagine a situation where कि आपने भोपाल को नंबर 1 पे रखा है, तो उस केस में आपका जो रिस्क ओरिएंटेशन होगा, इट शुड बी लेस इन नेचर. जरूरी नहीं है दैट यू शुड अटेम्प्ट 80 to 90 क्वेश्चंस और 70 क्वेश्चंस, क्योंकि इवन इफ यू स्कोर रैंक 1 in CLAT LLM examination, you will get Bhopal only. In addition to this, if you belong to a reserved category or to a domicile category of a state, so remember all those things. ये सारे चीज, ये जो factors हैं, these factors become extremely significant in the allocation of colleges. जब आप लेक्स टेम्पलम का मॉक देते हैं और ऑफ एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू आर गिवन अ डेफिनेट रैंक. दैट रैंक इज विदाउट एनी रिजर्वेशन और एक्सेट्रा. But the examination which will be conducted tomorrow is placed on a different footing altogether. So I'm just telling you, adopt a very smart, meticulous and comprehensive strategy. Questions अगर अच्छे से नहीं पता होगा तो please attempt नहीं कीजिएगा. It's not important. Now coming to the cutoff, चाहे वो NLU दिल्ली हो या BHU हो, मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू आर सिक्योरिंग मोर देन 50% ऑफ मार्क्स, आपको सीट मिल जाएगा. द सेम थिंग, मतलब इवन जो BHU का भी कट ऑफ आया है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 180 आउट ऑफ 360, उनके पास चांस है सीट मिलने का. नाउ द सेम थिंग अप्लाइज टू CLAT LLM एग्जामिनेशन आल्सो. So I am again telling you, if you are getting more than 60 in 120, now which actually depends upon the quality of the paper, and I am going with the fact, क्योंकि हमने जो sample paper देखा था which was released in the month of April और March in my opinion, उसका standard था वो काफी अच्छा था. So this is my last request to all of you कि अगर आप 60 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और पहला strategy ये रहेगा कि जब आप 120 questions देख रहे हैं, so let us say कि एक comprehension is based on competition law and you don't have any idea about competition law, आप वो passage को देखिए ही नहीं, don't see at the first time. उन्हीं passages को attempt कीजिए जिसका questions है, जिसमें आप confident है, constitutional law, criminal law, और vice versa. If you are confident in competition law, उसी से start कीजिए. So in the first go, if you are securing more than 60 or 55 or even 50, you are in a comfortable situation and space, आपको definitely seat मिलेगा. लेकिन generally मैंने जो 5 mocks के analysis देखे हैं, that students 30 questions गलत कर दे रहे हैं. 30 questions गलत करना मतलब कि आप उसमें 25 guesses मार रहे हैं. Why are you attempting that many number of questions? Please don't attempt. अगर आपका, even if you are securing more than 45 or 50, please don't attempt any question. Attempt in the sense कि अगर आपको 20% भी मतलब अगर आपको 30% भी डाउट है, 30% भी डाउट है, don't attempt. And please try and understand one thing. CLAT में there is a difference between NLUD, BHU, DU and CLAT. CLAT में 16 colleges हैं. 16 colleges में अगर आपको NLS नहीं मिलेगा तो नालसार मिलेगा, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा निगेटिव अटेम्प्ट कर दीजिएगा, so it will drastically and negatively impact your overall performance. अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो आउट ऑफ 150 बहुत मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आई एम स्पीकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. 40 मार्क्स तक भी
NLUs मिले थे, आउट ऑफ 150 में 40-45 में भी NLUs मिले थे, अनरिजर्व्ड, राइट? आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट रिजर्व्ड कैटेगरी. सो ये सारे कंसिडरेशंस को मिला के विथ अ कूल हेड एग्जाम को आप अप्रोच कीजिएगा. और अगर इन केस अगर आप बोल रहे हैं सर मतलब हमसे 3 कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं बन रहा है या 4 कॉम्प्रिहेंशन भी एग्जाम में अच्छा नहीं बन रहा है, then you can actually go for that luck factor कि you can attempt many questions. लेकिन अगर आपसे 4 से 5 questions भी बन रहा होगा एग्जाम में, तो प्लीज unnecessarily questions को attempt नहीं कीजिएगा. Any questions? और and yes please and अभी जो टाइम बचा है, yeah absolutely is based on number of correct answers. Yeah, what should be the attempt? See, attempt मैं फिर से बोल रहा हूँ now, someone who is मतलब बहुत लोग हैं who's aiming for under 50 because they want a seat in NLS. So अगर आपको NLS में सीट चाहिए तो मेरे हिसाब से first it will depend upon the quality of the questions. तो आप लोगों ने आज तक बहुत सारा मॉक दिया है, लेक्स टेम्पलम का, जूरी सर्च का, फिनोलॉजी लीगल का. आप एक बार खुद का असेसमेंट कीजिएगा कि वहां पे क्या है. जितने भी बच्चे मॉक्स दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्वाइट मेरिटोरियस इन नेचर. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अचानक से अगर कोई जो बच्चे मॉक नहीं दे रहे हैं लेक्स टेम्पलम का या जूरी सर्च का, वो पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ही हाई कट ऑफ चला जाएगा. ऐसा नहीं होगा. तो अगर आपका 75 प्लस आएगा या 70 प्लस, इन माय ओपिनियन 70 plus will be a very good score for you to land up in NLS. 70 plus अगर वो जा रहा है तो 70 plus is a very good score. Remember, I'm saying for NLS, I'm not saying for NALSA, NUJS, भोपाल, etc. etc. वो कट ऑफ कम होती जाएगा. बट आई एम सेइंग व्हेन द क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा. मॉडरेट टू डिफिकल्ट का होगा तो 70 प्लस विल बी अ गुड स्कोर. लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट रहा देन ऑफ कोर्स योर मतलब अच्छा स्कोर 80 प्लस हो जाएगा. +10 विल बी द स्कोर. प्लीज गाइज डोंट पैनिक अगर पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा. बहुत बार देखिए, जैसे सर इज देयर एनी चांस दैट द केसेस व्हिच आर आस्क्ड इन एनलैट सैंपल पेपर, देखिए सी इन माय ओपिनियन ऐसा तो नहीं होना चाहिए. चांसेस आर वेरी लेस, बट स्टिल आपके पास टाइम है, एक बार देख लीजिएगा. नाउ वन मोर थिंग, मैंने जो एनलैट का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ने सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दिया था. सिंपल जो मैक्सिम्स था, लीगल मैक्सिम्स था. आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्लीज ट्राई एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. एक बार सोचिएगा. जैसे जो अयोध्या, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, राइट? गो बैक टू द अयोध्या केस. अगर आपको अयोध्या केस याद भी नहीं था तभी भी पता था कि अयोध्या केस में कोई जजमेंट, किसी ने उस जजमेंट को लिखा ही नहीं था. इट वाज अ जजमेंट व्हिच वाज ऑथरलेस. इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन ये था कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अयोध्या कैसे हुआ था, किस एक्ट में हुआ था. सो यू नो व्हाट इज मेंशन्ड इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, यू नो व्हाट इज मेंशन्ड इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. सो प्लीज अप्लाई योर माइंड. Even if you have not read a case and that case comes in the examination, still you will be able to secure 3 to 4 marks, and that 3 to 4 marks will be the game changer in the final ranking. तो hopeless मत होइएगा. No student will be able to solve all the 12 comprehensions, even 11 comprehensions. ऐसा नहीं होता है. ये लॉ का एग्जामिनेशन है, ये मैथ्स नहीं है. ठीक है? तो राइट. और अननेसेसरीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा. एनलैट में बहुत लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया. एनलैट में डिफरेंस ये था कि इवन इफ यू आर मिसिंग अ क्वेश्चन देन आल्सो देयर विल बी अ नेगेटिव. हियर इन क्लैट दैट विल नॉट बी देयर. सो गाइज, आप लोगों को खुद याद होगा कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके हिसाब से जाइएगा. क्योंकि अगर आप रैंक 1 भी लाइएगा तभी आपको भोपाल मिलेगा. बट ऐसा नहीं है कि रैंक 1 के चक्कर में आपको भोपाल में मिस आउट हो जाए, वेर यू एक्चुअली वांट टू स्टडी, राइट? सो प्लीज बी पेशेंट. इवन इफ द क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं, मान ली, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, इवन इफ दे आस्क यू अ डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन लॉ or even on any case law which you have not read, there will be 2 or 3 questions which you can solve by normal understanding of law. तो कंप्लीटली उसको छोड़िएगा मत, हल्का सा दिमाग लगाने का कोशिश कीजिएगा. आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, all of you will do exceptionally well, and please don't judge yourself on this performance. Life is extremely long. अगर आज, it's all about carrying a very positive attitude. All the best guys. कल ही आंसर सीट आएगा, पैनिक मत कीजिएगा और अच्छे से आंसर देखिएगा. सो ऐसे भी ज्यादा टाइम आपको मिला नहीं है. व्हाट केसेस टू डू लास्ट मिनट? यस,
one more thing. I'm going to start with constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 देख लीजिएगा पूरा. लास्ट मिनट आई एम सेइंग. फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली देख लीजिएगा along with amendment. खासकर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 तो जरूर से देखिएगा. आर्टिकल 15 और 16 तो जरूर से देखिएगा. 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 भी देखिएगा. 16 4A 4B भी देखिएगा. ऑफ कोर्स जर्नैल सिंह वाज देयर. फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 29, 30 एंड आर्टिकल 25. रिलीजन के सारे आर्टिकल्स देख लीजिएगा. आई होप ठीक है. उसी के हिसाब से मनी बिल का जो आर्टिकल है, जो मनी बिल फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल है, एक बार उसको देख लीजिएगा. अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का आर्टिकल्स देख लीजिएगा. आई एम जस्ट टेलिंग कि अभी जो टाइम है उसमें आपको क्या देखना है. राज्यसभा में जस्टिस गोगोई का नॉमिनेशन हुआ था, वो सब थोड़े आर्टिकल्स को आप देख लीजिएगा एक बार. लेकिन फंडामेंटल राइट्स प्राइमरली देखना है. नाउ गोइंग टू द बैक सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली फ्रॉम 329 टू 335, 341, SC ST रिजर्वेशन, the power of the president to nominate any caste or category to be called as SC ST, 341, 342, उसको एक बार देख लीजिएगा. लास्ट मिनट में एक बार अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा. जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो 20 इंपॉर्टेंट केसेस हमने दिया है, उसको एक बार अभी रिवाइज कर लीजिएगा. बस ऊपर से ही नाम एक बार देख लीजिएगा और जो प्रोविजंस उसमें यूज किए गए, खासकर जो प्रोविजंस यूज किए, और अगर आपने कोई चीज को समराइज किया है तो उसको एक बार देख लीजिएगा. एंड बिलीव यू मी, इफ देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड इफ यू हैव रेड द केस, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. पैनिक मत कीजिए. टेक अ गुड स्लीप एंड जो भी होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड इन दिस वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स. बहुत दिन के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है. We will analyze the question tomorrow itself, right? Tomorrow in the night we will analyze this question, CLAT question. तो आप लोग कल रात में रहिएगा and we will discuss कि किसका क्या होगा. Give us some time. I will try to analyze the entire question. So all the best, all the very best. जितने भी चीजें, NI के जो amendment है उसको देख लीजिए, CRPC के amendment देख लीजिए, right? वैसे तो मुझे नहीं लगता फार्मर बिल से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है. मुझे कोई उम्मीद नहीं है. स्टिल कंटेम्प्ट का एक्ट देख लीजिएगा, ठीक है. कंटेम्प्ट और तो सुप्रीम कोर्ट देख लीजिएगा. और यस, हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो केस था, जो सैंपल पेपर में आया था एनलैट के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज कम इन एनलैट, जबकि मुझे नहीं लगता है दैट कॉम्प्रिहेंशंस और केसेस फ्रॉम अगस्त एंड सितंबर शुड एक्चुअली कम. बट स्टिल, अगर आपका प्रिपरेशन है और आप 1-2 घंटा में देख सकते हैं तो देख लीजिएगा. गो विद दैट सेट ऑफ प्रिपरेशन. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. We don't have a lot of time. Please don't try to experiment in the examination. अभी तक आपको पता होगा कि क्या आपके लिए काम करता है, क्या काम नहीं करता है. Yeah, EIA draft is very important. EIA draft assessment is very important from the perspective of environmental law. INRECA Lexi is very important. INRECA Lexi जो आप लोगों ने बार-बार किया है, that was the reason because of which ये मॉक में भी हमने INRECA Lexi केस पूछा है. इंटरनेशनल लॉ से अगर क्वेश्चन आएगा तो होपफुली वही आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट WHO, क्योंकि WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. पीपल वेर क्वेश्चनिंग WHO वेदर UNO हैज बिकम रिडंडेंट. तो अगर थोड़ा सा भी आपको रात में टाइम है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लीजिएगा. इज इट फाइन? आई होप दिस इज फाइन फॉर एवरीवन. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. गिव योर बेस्ट शॉट. वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. ओके, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, great. Thank you, Mohit sir. Thank you so much, and all the best, guys. Hope you all will bombard tomorrow, and definitely कोई अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग. Okay, thank you so much, and all the best. 60 marks will be enough.